Hello student, welcome to our YouTube education channel Sikshad Academy, class 10th science, chapter number 6 life processes. Today we are going to start the chapter number 6 remaining. तो देखो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, जिसकी वजह से क्या होगा, सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस द autotrophic nutrition. Now today we are going to discuss about the heterotrophic nutrition. Now it is a type of nutrition in which organism cannot make their food own food as it is lacks chlorophyll. देखो ये क्या होता है, जो भी heterotrophic nutrition से it is they cannot prepare their own food directly, indirectly they are depend on plants and animals. Okay, these are the dependent on plants. So we can define it. It is a type of nutrition in which organism cannot make their own food and as it is lack of chlorophyll. क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो भी क्लोरोफिल क्या होता है, they are due to the absent of chlorophyll it cannot prepare their own food or any other photosynthetic pigment. If any other photosynthetic pigments are present, then it can be prepared, but here the synthetic pigments are absent, therefore it cannot prepare their own food. For example, all non-green plants are the heterotrophic and animals are the heterotrophs because they cannot prepare their own food. They are dependent on green plants. In heterotrophic nutrition, energy is derived by the digesting organic substances obtained from the plants and animals. देखो heterotrophic nutrition में क्या होता है, जो मान लो एनर्जी तो चाहिए उनको भी, ओके, दे गेट एनर्जी बाय द डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, in this type of nutrition first the food is eaten. देखो in heterotrophic nutrition there are first of all the food is eaten, then digested into simplest form and finally they utilized by the organism. first क्या होगा कि in heterotrophic nutrition first देखो कोई भी substance organism है, they eat the food, after that they digested into simpler form like जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ओके, एंड फाइनली यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म. और क्या होता है बाद में ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको यूटिलाइज किया जाता है. इन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ओके, द हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1 इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड लास्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन types of heterotrophic nutrition. Then first one is your saprophytic nutrition. Saprophytic means dead and decay. Therefore they are the organism that the feed on the dead decaying matter. मान लो कोई जो भी saprophytic organisms हैं, ये क्या करते हैं कि dead matter के ऊपर ये live करते हैं and decay होते हैं, मतलब they can broken into simpler form. देन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड, क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, देखो जो भी डेड मान लो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर से क्या करते हैं, फूड मान लो फीड करते हैं. एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर नोन एज अ सैप्रोफाइटिक और सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, ये तो इनको बोलेंगे सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म. सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल and their mode of nutrition is called as a saprophytic nutrition. Example, fungi, bacteria and some other insects like housefly. These are the saprophytic nutrition. They secrete certain enzyme from their body surface that convert complex food into simple form and then they absorb it from the general body surfaces. first of all क्या होता है, जो भी इनके मान लो ये बॉडी है, इनके बॉडी से क्या होता है, दे सेक्रेट, क्या करेंगे, सेक्रेट करते हैं कुछ ऐसा एंजाइम जो क्या करते हैं, डेड मैटर के बॉडी के ऊपर जाके दे कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करते हैं एंड इनटू सिंपल फॉर्म में, वहाँ से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे एंड दे आफ्टर दैट दे ऑब्जर्व इट थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेसेस. नाउ सेकंड वन इज पैरासिटिक और पैरासाइट्स. Parasites are organisms that live in or on the surface of other organisms to fulfill
द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। देखो पैरासिट जो साइड से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, या तो मान लो कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर क्या हो, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो, ओके, उसके सरफेस के ऊपर हो, दैट मीन्स दैट आर द parasites nutrition. Therefore we can define it, parasites are the organism that live in or on the surface of other organism to fulfill their न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के फुलफिल के लिए क्या करते हैं, या तो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर होंगे या फिर उनके अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल लाइसेस इन ह्यूमन हेड, आपने देखा होगा कि ह्यूमन हेड में जो लाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हेड के ऊपर होते हैं, दैट मीन्स द सरफेस पे, उसके ऊपर है सरफेस पे। नाउ organisms that depend on other living organisms for their nutrition are called as a parasites, and their mode of nutrition is known as a parasitic nutrition. Now the organism from which they are obtained food are called the host. अब ये ऑर्गेनिज्म जो भी जहाँ से फूड ये लोग ले रहे हैं, दैट मीन्स दिस हेड इज अ होस्ट। जहाँ से भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, दे from where they obtain the food, that means that part is known as a host. Example, several bacteria, fungi, plants like cuscata and animals like tapeworms, ascaris, etc. are the example of parasitic nutrition. Now this relationship can be symbiotic or non-symbiotic. Now let's see what is symbiotic and non-symbiotic. Symbiotic parasite is that in which both the partner are mutually benefited. देखो इसमें क्या होता है कि जो मान लो सिम्बायोटिक में क्या होगा, ये इसके ऊपर से फीड कर रहा है, अब ये फीड करे तो मान लो जिसके ऊपर से होस्ट भी क्या कर सकता है, उसके ऊपर से दोनों को बेनिफिट होता है इन सिम्बायोटिक पैरासाइट में। बट इन नॉन सिम्बायोटिक में क्या होता है, ओनली वन बॉडी कैन बी बेनिफिटेड। ओके, symbiotic parasite is that in which both the partners are mutually benefit, like E. coli in the human intestine, as it obtain its food from our body but in response secrete the certain minerals for our body। देखो जो E. coli होता है हमारे बॉडी में, तो किसमें, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड obtain the food from our human intestine, and after that they secrete certain minerals which is benefited for our body. For example, E. coli bacteria, that means parasite in human intestine. Now here human intestine, it is act as a host. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों के दोनों बेनिफिट हो रहे हैं इन सिम्बायोटिक पैरासाइट। नाउ लास्ट वन इज लास्ट हेट्रोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का होलोजोइक। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल और होल ऑर्गेनिज्म आर टेकन एज अ फूड। देखो होलोजोइक में न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जी मान लो कोई भी एक प्लांट्स है, उस प्लांट्स के पार्ट को ईट कर रहा है, और एनिमल्स, ठीक है, या फिर होल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को दे कैन बी ईट एज अ फूड। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, जैसे ह्यूमंस हुए। ओके, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो 5 स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस like ingestion, digestion, absorption, assimilation, and last one is egestion. For example, man are the holozoic nutrition. Organisms showing this mode can be herbivores, carnivores और omnivores। देखो अब इसमें भी क्या होते हैं कि मान लो होलोजोइक में भी देर आर वेराइटीज़ लाइक हर्बीवर्स कुछ होते हैं, कुछ कार्निवर्स होते हैं और कुछ ओमनिवर्स। ठीक है, नाउ हर्बीवर्स आपने पढ़ा होगा, कार्निवर्स, हर्बीवर्स मीन्स दे कैन ओनली ईट प्लांट्स, कार्निवर दे ओनली ईट एज अ मीट, एंड ओमनिवर्स दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, देखो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। मैंने आपको 5 बताया था, जैसे इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज एजेशन। नाउ इंजेशन में क्या होता है, द इजेशन में देखो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इज द फूड इज कॉल्ड द एजेशन। मान लो कोई भी फूड को क्या करो, तो जो प्रोसेस होता है फूड को टेक करने का सबसे पहले वो क्या होगा आपका इजेशन। नाउ डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल।
इज़ नोन एज अ डाइजेशन। मान लो जो भी तुम क्या कर रहे हो, जो भी कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल, जो भी फूड आप खा रहे हो, सबसे उसको क्या करेंगे, दे ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर molecule. That process is known as a digestion. Now the simple molecule thus obtained can be absorbed by our body and that process is known as a absorption. देखो absorption, the process of absorption of digested food is called as a absorption. Now fourth one is assimilation. Assimilation क्या होता है, the process of utilization of digested food for energy and for growth and repair is called the assimilation. देखो अब जो भी मान लो फूड डाइजेस्ट हुए हैं, ओके, दे कैन बी यूज्ड, देखो दे प्रोवाइड एनर्जी, ओके, एंड इंक्रीज देयर ग्रोथ एंड रिपेयर देयर सेल्स, दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज नोन एज अ एक्सिमिलेशन. नाउ इन दैट लास्ट प्रोसेस इज और लास्ट एजेशन. तो एजेशन, व्हाट इज एजेशन? एजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एजेशन. देखो कुछ फूड क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, बट बाद में क्या होते हैं, कुछ फूड बचे होते हैं, ठीक है. दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी. ये भी क्या होता है, नेसेसरी होता है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अ एजेशन. एजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, तो देखो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. ओके, थैंक यू वेरी मच. लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो सभी को.